लेट्स सी द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स में कौन कौन आता है? काउ, बुफेलो, शीप एंड गोट। तो ये रूमिनेंट्स होते हैं क्योंकि ये लोग घास खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते घास, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। और ये सेल्यूलेज एंजाइम किसके अंदर है? रूमिनेंट्स के अंदर। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि सेल्यूलेज एंजाइम क्या इनके ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो आंसर इज नो। दिस सेल्यूलेज एंजाइम इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया present in the rumen, and these bacteria do the fermentation, and this process does not occur in the non-ruminants. For example, in non-ruminants, as we have studied, carbohydrate partially digested in the mouth by the salivary amylase, and then finally it get digested in the stomach and small intestine and absorbed as the glucose, and it take part in the respiration like glycolysis, Krebs cycle, ETS, and then ATP form. But in the case of the ruminants, there is a process called fermentation which occur in the rumen. As a result of the fermentation, there will be the production of volatile fatty acids and other gases. And also the salivary amylase is not active or absent in their mouth because of the alkaline pH, because salivary amylase need the acidic pH. Hence we have to study the fermentation, and this fermentation is occurred by the microbes in the rumen. And so let's start the microbial fermentation. So microbes which are responsible for the microbial fermentations are bacteria, bacteriophage, protozoa and fungi. So if you want to study more deep about, then you have to study all the bacteria like starch digesting bacteria, cellulase digesting bacteria, and then lipid digesting bacteria. So you have studied in detail if you want. Then we have bacteriophage, protozoa and fungi. You have to learn their numbers in the rumen. For example, the bacteria are mostly populated. They are around 10 to power 10 to 10 to power 11. Then we have bacteriophage around 10 billion, and then 10 million around protozoa, and there are 10,000s of fungi present in the rumen. Now what do these bacteria do? They do hydrolysis and anaerobic oxidation. Keep this in mind, there should be no oxygen present in the rumen, otherwise these bacteria will not do their processes. And to ensure the anaerobic condition, some bacteria are responsible which are already present in the rumen. Now the product form as a result of the fermentations, you have to remember it, like you have to learn it. That is volatile fatty acids, for example acetic acid, propionic acid and butyric acid, and the gases formed are CO2 and methane. Now you have to learn this ratio, it's very important. This can be asked in the OT. For example, what are the ratio of the acetic acid, propionic acid and butyric acid formed in the rumen? That is 70:50:10. You have to keep it very clear, crystal clear in your mind. Then the gases formed are CO2 and methane, mainly hydrogen also formed, and the ratio is 65:35. Now the question arises, why volatile fatty acids are formed, and what are they? What are the volatile fatty acids? So the answer is, the volatile fatty acids are the short chain fatty acids, and they are having the low molecular weight. They are the good source of energy. They are absorbed by the ruminal wall mainly. They are also absorbed by the reticulum and oomycem. If it is not absorbed by the rumen, then it can also absorb in reticulum and oomycem. Now these volatile acids are formed as a result of ruminal fermentation, and they are produced by the ruminal microorganism. Because volatile fatty acids give more amount of energy, that's why they are formed. Main volatile fatty acids are acetic acid, propionic acid and butyric acid, but there are other volatile fatty acids are also there. You have to just know कि आइसोब्यूटारिक एसिड इज़ ऑल्सो वोलेटाइल फैटी एसिड. ये ना टिक मार्क में आ सकता है ओटी कि इन चारों में से कौन सा है जो वोलेटाइल फैटी एसिड नहीं है. तो ऐसे अगर ये ऑप्शन में आया तो आप इसको गलत कराओगे. इसलिए आइसोब्यूटारिक एसिड भी होता है 3-methyl butyric acid, 2-methyl butyric acid एंड वेलेरिक एसिड. ना व्हाट आर द फेट ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड. अब ये जो वोलेटाइल फैटी एसिड बने इनका होगा क्या? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द आंसर इज, these volatile fatty acids are the energy source, and they will take part in the metabolic reaction, and on oxidation they will produce the good amount of energy. For example, if we talk about the fate of acetic acid, so acetic acid is a precursor of acetyl coenzyme A, and we know acetyl coenzyme A is a part of TC or the Krebs cycle, so it will form the ATP.
दे विल फॉर्म अराउंड 10 ATP, एसिटिक एसिड से 10 ATP मिलते हैं, विच हेल्प इन द नाउ। एसिटिक एसिड का दूसरा फंक्शन क्या है, ये फैट का सिंथेसिस करता है मिल्क में। जो देखो एनिमल के लिए लैक्टोजेनेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मिल्क में जो फैट है, अब हम जानते हैं लैक्टोजेनेसिस में जो भी मिल्क कंपोनेंट्स होते हैं वो डी नोवो होते हैं, वो खुद ही बनाती है मैमरी ग्लैंड। तो फैट के सिंथेसिस में ये कंपाउंड जाएगा एसिटिक एसिड, और वहाँ से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा और ये मिल्क की फैट के प्रोडक्शन में मदद करेगा। इसीलिए एसिटिक एसिड को पॉपुलरली हम लाइपोजेनिक भी कहते हैं, और ये आपको लैक्टोजेनेसिस में भी पढ़ने को मिलेगा। ना ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिक एसिड 10 ATP मिलते हैं। सो दिस इज द फेट ऑफ एसिटिक एसिड, वो या तो मिल्क फैट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ऑक्सीडेशन करके 10 ATP प्रोड्यूस कर देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। सो प्रोपियोनिक एसिड इज अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज। प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ लैक्टेशन फिजियोलॉजी, वहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो प्रोपियोनिक एसिड इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हम जानते हैं रूमिनेंट्स जो होते हैं उनमें डायरेक्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है, तो प्रोपियोनिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और जो प्रोपियोनिक एसिड है वो लैक्टोज का फॉर्मेशन करता है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कितने ATP प्रोड्यूस होंगे ऑन ऑक्सीडेशन। ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड देयर विल बी अराउंड 18 मोल्स ऑफ ATP आर फॉर्म्ड। 18 मोल्स ऑफ ATP बनते हैं। प्रोपियोनिक एसिड जो होगा वो सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में हम जानते हैं इट इज़ अ TCA साइकिल का एक प्रोडक्ट है, तो TCA साइकिल में भी चला जाएगा और TCA साइकिल से फिर 18 मोल्स ऑफ ATP बना देगा। अब हम जानते हैं TCA साइकिल को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी प्रोपियोनिक एसिड ही फॉर्म करता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रोपियोनिक एसिड कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहे हैं और यही हमारे पास क्या बना रहे हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना रहे हैं। तो TCA साइकिल में जाएगा और ATP का प्रोडक्शन करेगा और मिल्क में लैक्टोज का प्रोडक्शन करेगा। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ह्यूमन के केस में इतना, या फिर मैमल्स में इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेट ऑफ द लास्ट, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। द फेट ऑफ ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगेन ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रिकर्सर होता है, तो फिर ये किस में टेक पार्ट करेगा, TCA साइकिल में हेल्प करेगा। TCA साइकिल में जाएगा और वहाँ पे जाके ये कीटोजेनेसिस करेगा, इसलिए इसको कीटोजेनिक भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कीटोजेनिक। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट, जो हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड है सबसे ज़्यादा ATP प्रोडक्शन करता है, इट फॉर्म अराउंड 35 ATP। टू रिमेंबर दिस कि कितनी सारी ATP बनती हैं, ये 35 ATP आर फॉर्म्ड बाय द ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो ये TCA साइकिल में जाएगा और कीटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कीटोन बॉडीज़ को फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड है वो ब्यूटायरिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटायरिल कोएंजाइम में एसिटाइल कोएंजाइम A में जाएगा। फिर ये मतलब हमें ये कहीं ना कहीं इन सारे फैटी एसिड्स को TCA साइकिल में भेजना है और वहाँ से ये ATP का प्रोडक्शन करते हैं। और ये सारा काम कहाँ होता है, TCA साइकिल मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और मेनली वहाँ पर भी जाएंगे तो लिवर के पास। तो ये थोड़ा याद रखना कि सारे के सारे वॉलेटाइल फैटी एसिड्स पहले लिवर में जाएंगे, फिर वहाँ पर जाके इनका काम होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जितने भी फैटी एसिड्स हैं सारे के सारे कहाँ पे मेटाबोलाइज होंगे, लिवर के अंदर। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यों ह्यूमन के अंदर ही फर्मेंटेशन हो रहा है। अभी हमने ये देखा कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्यों ह्यूमन के ही अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है और फिर किस तरह से कार्बोहाइड्रेट से पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से वॉलेटाइल फैटी एसिड्स बनेंगे। तो वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।